Radhe Radhe everyone, Atma Namaste. A very warm welcome on today's session, the first introductory class of Professional Vedic Numerology. It's so nice to see my participants have joined. So it's a humble request from everyone. आप लोग सब अपने cameras on कर सकते हैं so that we know each other better. And we'll start the session with a small meditation so that we all are focused and concentrated for the rest 55 minutes. Yes, I can see Biani Uncle Ji. Radhe Radhe Uncle Ji. So nice to see you on the session. It's a pleasure indeed. Seema, Vishesh, Manju, all of you, you can open your cameras only if you feel comfortable. So we will start the session with a small meditation. So let us fold our hands in prayer pose so that it's a meditation का purpose सिर्फ यही होता है कि we all are focused for the rest of 55 minutes in the class and we grasp things better. Because all of us are here for understanding numerology, the science of numbers, the language of numbers. And as it is a science, so we have to be more focused, concentrated, and more divinely connected. So, yes, let us fold our hands in prayer pose. And we will do just a small invocation, and then we will do 3 deep breaths. And again, we will do a closing invocation and we'll come back to the session. Yes. So we'll fold our hands in prayer pose. We will pray to our divine for the smooth running of the session. O Divine Father, Divine Mother, all the holy gurus, all the devas, all the Kul Devis and Kul Devtas, all the Ishta Devis and Ishta Devtas, all the angels of technology, numerology, all the occult sciences, angels of better concept and understanding, our guardian angels. Angels present in this room and in the room of respective participants, and all the participants who are watching this session later or who are joining later. We all hereby invoke for your priceless blessings, help, healing, and protection, and for the smooth running of the session. We all hereby thank you in full faith. Thank you, thank you, thank you. Yes, we will take 3 deep breaths to unfold the tension and all the thoughts which have been going on in our mind, and then we will join for the session. With every breath, we will inhale lots of positivity that is there in our aura, and with every exhalation, we would exhale all the thoughts, all the grudges, all the possibilities of tensions that are going on in our mind, and we have been facing everything throughout the morning. So yes, the first breath, we'll take a breath, we'll hold for 3 seconds and exhale. So the first inhalation, with the first inhalation, we have inhaled all the positive energy around us in our aura, and we have exhaled all the tensions going on in our mind. हमें लग रहा है कि हम रिलैक्स्ड हो गए हैं थोड़े से, हमारे कंधे थोड़े से ड्रूप डाउन हो गए हैं, थोड़ा सा दिमाग फोकस हो रहा है, जो चिंताएं मन में चल रही थी ऐसा लग रहा है ठीक है ना, थोड़ी देर बाद कर लेंगे. तो करते हैं सेकंड इनहेलेशन. हम ज्यादा रिलैक्स हो गए हैं, ज्यादा स्थिर हो गए हैं, मन की चिंताएं धीरे धीरे साइड हो रही है. चिंताओं को हम छोड़ तो नहीं सकते हैं, मगर हम बिल्कुल उसे कह सकते हैं अभी मैं 50 मिनट्स के लिए न्यूमरोलॉजी के सेशन में हूँ, 50 मिनट्स के बाद मैं आपसे फिर से बात करूंगी. इसी के साथ हम करते हैं थर्ड इनहेलेशन, द डीपेस्ट ब्रेथ, जिसे हम थोड़ा ज्यादा लंबा भी लेंगे और थोड़ी ज्यादा देर होल्ड भी करेंगे. द थर्ड ब्रेथ. इसी के साथ हम फील कर रहे हैं कि हमारे कंधे बिल्कुल रिलैक्स्ड हो गए हैं, मन में जो भी बातें थी वो शांत हो गई है, सारे काम हमने साइड रख दिए. हम पूरी तरह से न्यूमरोलॉजी के सेशन के लिए प्रिपेयर्ड है. हमारा मन फोकस हो रहा है, हमारा ध्यान स्थिर हो रहा है. हम जाना चाहते हैं नंबर्स की दुनिया में, उसके लिए हम बिल्कुल स्थिर और फोकस्ड हैं. तो हम करते हैं फिर से प्रभु का असीम धन्यवाद, जिन्होंने हमें ये सेशन दिया, सेशन करने का अवसर दिया.
Thank you so much, divine parents. Thank you, thank you, thank you. So yes, we are now full of energy and we come back to the session. Yes. So a very, very warm welcome to everyone on the session of Professional Vedic Numerology, today being the first class. So yes, it's time for a short introduction of everyone. तो यस, कौन सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? यस अंकल जी, वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन, आप क्यों न्यूमरोलॉजी की क्लास में जुड़ना चाहते थे? आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम जानना चाहेंगे आपसे। मैं, जैसा कि नाम आ रहा है, लक्ष्मी कुमार बियानी। जी। आई एम नाउ क्रॉसिंग सुपर सीनियर सिटीजनशिप, और आई एम कनेक्टेड विद मैनी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, मातृमंगल, भारत रिलीफ सोसाइटी, सीकर नागरिक परिषद, जूनियर चैम्बर, जेसीस, and some of our area local bodies. I am interested in Madam's this numerology. This is my first introductory, I can say. I just want to listen, get the information, how it is going to be help and the career of other persons. Each and everyone, if I go with the numbers, how I will get generally in my case, I am telling you that I go with my birth date, and it is, someone calls it is superstitious, but I am satisfied that it is giving me positive results. Oh, that's really nice, Uncle जी. Number Thank you day. so much. It's indeed a pleasure to have you on board. आपका आशीर्वाद हमें मिल गया. So many thanks to you. Thank you. Thank you so much. Yes, Seema ji, can we get your introduction, please? Kindly unmute yourself. हेलो मैम, सीमा मोहंता हियर। मैं प्रोफेशनली वैसे इंटीरियर डिजाइनर हूँ, बट नाउ आई एम मोर इनटू जूट बैग मैन्युफैक्चरिंग। अभी न्यूमरोलॉजी के संग जुड़ने का खाली इतना सही था कि इच्छा है जानने की कि क्या इट इज एक्चुअली, मतलब द नंबर्स वर्क, एंड मुझे जिज्ञासा है बेसिकली, और हाउ इट वर्क्स एंड ऑल दिस थिंग्स। तो इसीलिए मैं सोची एक बार पहले एक क्लास लेके देखूं, देन आई विल थिंक अबाउट द कोर्स। Yes, definitely. Thank you so much, Seema ji, for joining. Nice to have you on board. So can we ask Manju Sinha ji to unmute herself and also to put her camera on so that we can take her introduction? Manju ji and Sharmila ji, either of you? Yes, Manju ji? Yeah, hi, but I'm unable to actually uh, put the video on actually. I've given you the option of starting the video. Just check it out. Yeah, Okay, कोई बात नहीं मंजू जी. You can just share your brief introduction. okay. Okay, I'm Manju Sinha and I'm into a salon business actually. And since I stay in Kolkata, but now I'm in Bangalore for my son. So I had time, so I was curious about it, but I never got time to just. So I wanted to know. So what is all about this? So I'm just. Nice, very nice. Thank you so much, Manju Mm-hmm. ji, to have you on board. Definitely, you'll benefited from the session, and you Mm-hmm. will also be able to unfold the different mysteries of numbers. Thank you so Yeah. much. Okay. Yes, Sharmila ji, would you want to introduce yourself? Hello, ma'am. Hello. Ma'am, I've come to know about this course from one of my friend, ma'am, Hmm. and just wanted to know about numerology. Okay, so nice. Little with Facebook, ma'am, I keep seeing to now little bit of interest. Hmm. From that, maybe I can learn more and get into this. Definitely, yes, this session is going to benefit you for people who are ardent learners, people who actually want to probe into this beautiful world of numbers. Of course, for them, it is a beautiful session. It's an informative session.
It's a very, very mesmerizing session, I can promise. And Thank you. best all is destiny. आपके लिए जो chosen है वही आपको मिलता है. So let us hold our hands together and walk this special path. Thank you so much for introducing yourself. Thank you, ma'am. Thank you so much. So yes, now to start with this beautiful session of numerology, I just want to start with my own introduction. So friends, as you can all see on the screen, I am Rashmi S. Saraf, an astronumerologist, consultant and trainer. And I have my own brand, Numeroscience with Rashmi Key to Your Success, via which any student who's participating in any course of Numeroscience with Rashmi, they are certified from there. And of course, yes, they can start their practice with that certificate. But my educational background is slightly different. I am a CMA, Cost Management Accountant, with a certificate of practice. And yes, it was a beautiful journey of a transformation from a CMA to a astronumerologist, because numbers were always my calling. When I was a finance professional then, and now when I am an astronumerologist then. So as I said earlier, I give consultations to aspirants, both personal and professional, corporate consultations also. And I also train professionals to become better professionals, homemakers to understand their lives better, students to get the proper career choices, and the people who are senior citizens to understand their life better कि अब उनके पास क्या क्या options है, वो क्या क्या कर सकते हैं. So the four major spectrums of life: career, health, wealth, and relationship. Of course, we can understand better via this beautiful science of numbers. तो अब जैसे हम न्यूमरोलॉजी की इतनी बात कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली न्यूमरोलॉजी हमें हेल्प कैसे करता है, उसके लिए आई जस्ट टेक अ मोमेंट टू शेयर द स्क्रीन, एंड आई बिलीव आई वुड बी एबल टू make you understand things in a better way. Yes. So as you can all see on my screen, is everyone able to see my screen properly? I believe. किसी को नहीं दिख Yes, रहा है तो ma'am. बिल्कुल बता सकते. Yeah. Thank you so much for the confirmation. Yes, we can So as we see. can all see on the screen, हर नंबर कुछ कहता है. Yes. हर नंबर कुछ कहता है, हर नंबर की एक भाषा होती है. Our life is full of numbers. From the day we were born, that was a date, our birthday. जिस दिन हम रोए थे और संसार हंसा था, सब खुश हुए थे कि यस, हमारे घर में एक बहुत सुंदर बालक आया है, प्रभु ने अपनी ब्लेसिंग्स दी है हमारे घर में. Our date of birth, our cosmic DNA holds the key to our strengths and weaknesses. Then we grow up, we go to school, class section, roll number. The house we stay in, that's a house address, it's a house number. जो गाड़ी हम लोग को स्कूल लेके जाती है, कॉलेज लेके जाती है, हम लोग को ऑफिस लेके जाती है, टाइम पे हमें हमारा डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है, हम उस गाड़ी को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? किसी की गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी है और हम कहीं पे किसी रेस्टोरेंट में गए हैं खाना खाने, किसी ऑफिस में गए हैं, तो द सिक्योरिटी कम्स एंड आस्क्स ये गाड़ी नंबर किसका है, ये किसकी गाड़ी है? सो हाउ डू वी आइडेंटिफाई द कार? We identify the car by the car number or the vehicle number. यानी नेट अगर हम कहें तो जिस दिन हमारा जन्म हुआ, जिस दिन हमने पहली सांस ली, उस दिन से लेकर आखिरी सांस तक, द लास्ट डे वी टेक द ब्रेथ अंडर द सन, लाइफ इज फुल ऑफ नंबर्स. सो देयर इज अ डैश बिटवीन इट. फ्रॉम द इंसेप्शन, मतलब जिस दिन आप बॉर्न हुए थे उस दिन से लेकर टिल द डेट ऑफ डेथ, देयर इज अ डैश बिटवीन इट. इतना साल से लेकर इतना साल तक. तो हम उस डैश को बहुत मीनिंगफुल बनाते हैं आपके लिए वाया अनवेलिंग द ब्यूटीफुल साइंस ऑफ नंबर्स. तो कैसे ये नंबर्स आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, कैसे ये नंबर्स आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं. न्यूमरोलॉजी इंडीड इज द साइंस ऑफ नंबर्स, द लैंग्वेज ऑफ नंबर्स, एंड वो कैसे आपको हेल्प करेगा, इसके बारे में ही हम आगे बात करेंगे. बहुत सारे जन मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं, जो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सबसे फर्स्ट में आज लिया है. बहुत सारे जन मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं, आप कहते हैं न्यूमरोलॉजी से आप रेमेडीज दोगे, आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाओगे, आपकी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी. लेकिन अगर सब कुछ फिक्स्ड है, सब कुछ अगर डेस्टिनी है, तो फिर प्रॉब्लम जो है वो कैसे कम समय पे सॉर्ट आउट हो जाएगी, किस तरह से हम उस प्रॉब्लम से मुकाबला करके अपनी प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज द बिग बिग क्वेश्चन आई फेस एवरी डे. तो यस फ्रेंड्स, तो न्यूमरोलॉजी इज लाइक अ मेड डिपार्टमेंट. मौसम विभाग की तरह बिल्कुल काम करता है. मौसम विभाग हमें जानकारी देता है किस समय बारिश आएगी, तूफान आएगा, अम्फान आएगा. मौसम विभाग ने कभी क्या ऐसा दावा किया है कि वो आने वाली बारिश को रोक सकता है?
नहीं रोक सकते हैं, मगर उससे सुरक्षा हम अपनी कैसे करें? हाउ डू वी अंडरस्टैंड किस इंटेंसिटी में बारिश आएगी? नॉर्मल बारिश आ रही, यू कैन गो आउट विद एन अम्ब्रेला। ज्यादा है, यू कैन वेयर अ रेनकोट एंड यू कैन ऑल्सो कैरी एन अम्ब्रेला। लेकिन अगर आमफान तूफान आने वाला, आइला आने वाला है, तो घर से बाहर नहीं निकलना है। दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द मेट डिपार्टमेंट, सो यू हैव टू स्टे इंडोर्स, प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड एवरीथिंग ऑफ योर्स, ऑल द एसेट्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड। ये जानकारी हमें देता है मेट डिपार्टमेंट, यानी कि मौसम विभाग। In the same way, numerology gives us the GPS of our life. The science of numbers can become the GPS tracker of your life, and you can definitely understand how to go about it. किस समय आपको इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, किस समय आपको बिजनेस करना है, किस समय बिजनेस आपके लिए सूटेबल नहीं है, सो यू शुड स्विच टू अ जॉब। अगर होम मेकर है तो घर में उनको किस तरह से अपने घर चेंज करना है, घर में कुछ सामान भी लाना है तो किस समय पे लाना है, नया घर लेना तो उसका मुहूर्त कब होना चाहिए, यहाँ तक कि आपके घर में कोई बेबी पैदा हुआ है तो उनका नाम किस अक्षर पे होना चाहिए। अक्षर तो आपने सब लोग ज्योतिष से भी निकाल लिया, लेकिन उनका नाम का जो कंस्टेलेशन है, जो नेम न्यूमरोलॉजी होती है, दैट ऑल्सो गिव्स यू अ न्यूमेरिक वैल्यू। तो क्या नाम होना चाहिए उस बच्चे का, इस तरह की तमाम चीजें। यस, यू अंडरस्टैंड वाया दिस साइंस ऑफ नंबर्स, बिकॉज ये सिर्फ नंबर्स नहीं है। मैं तब से कहे जा रही हूँ नंबर नंबर नंबर, तो नंबर्स एक्चुअली है क्या? ये हमारे रूलिंग प्लैनेट्स है, जो हमारे ग्रह नक्षत्र जिनके बारे में हम बात करते हैं, सूर्य, चंद्रमा, देवगुरु बृहस्पति, राहु, केतु, शनि, इन सब के बारे में हम सुनते हैं ना। हम बात करते हैं शनि की 7.5 चल रही है, राहु की महादशा आई हुई है, इसलिए मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरा पैसों का नुकसान हो गया। शनि की 7.5 चल रही, मेरे तो काम ही नहीं बन रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें पंडित जी से सुनते हैं, हम करते हैं। तो यस, न्यूमरोलॉजी इज एक्चुअली अ वर्टिकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष में हम सब बिलीव करते हैं, ऑल ऑफ अस बिलीव इन ज्योतिष, एंड वी अंडरस्टैंड कि ज्योतिष वर्क्स फॉर अस। ज्योतिष का ही जो अंकों वाला हिस्सा है, अंक ज्योतिष, उसी का तो इंग्लिश नाम है न्यूमरोलॉजी। बिल्कुल ये हमारा इंडिया का ही साइंस है, जो ऋषि पाराशर, ऋषि ऋषि भृगु नंदी द्वारा बनाया गया है। ये कोई अलग साइंस नहीं है, ये कोई फॉरेन कंट्री से लाया हुआ इम्पोर्टेड साइंस नहीं है। ये बिल्कुल हमारा इंडियन साइंस है, जिसको एक मॉडर्न रूपरेखा दी गई है, ताकि हम उसको बेहतर समझ पाए, अपने यूज के लिए हम उसको यूज कर पाए, एंड अपने लाइफ में हम अच्छे रिजल्ट्स पा पाए। न्यूमरोलॉजी से हमें क्या मिलता है? न्यूमरोलॉजी से, यस ऑफ कोर्स वी कैन एस्केलेट आवर अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हो, अगर 1 रुपए का कॉइन एक इंसान रोज एक गुल्लक में डाले, तो यस वो गुल्लक उनकी भरती जाएगी एंड उनके पास बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी हो जाएगी। उसी तरह से अगर आपको पता हो कि आपकी लाइफ 10 साल के बाद कुछ आने वाला है, तो आप उसके लिए अभी से तैयारी करोगे। अच्छा है, बहुत अच्छा, या फिर कम अच्छा, बहुत बुरा, आप उसके लिए अभी से अगर तैयारी कर रहे हो, आने वाले समय के लिए आपको एक तो रोड मैप मिल गया कि यस ये होगा। जैसे कोई बच्चा क्लास 2 में पढ़ता है, तो हमें पता है कि क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम्स आएगा, तो हम 4-5 से उसकी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। कोई बच्चा कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, तो 5-6 से उसकी प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। उसी तरह से इफ यू अंडरस्टैंड द जीपीएस ऑफ योर लाइफ वाया न्यूमरोलॉजी, यू कैन प्लान इट अकॉर्डिंगली एंड गेट द बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स फ्रॉम इट। Your investment of time, energy, and money definitely would be amplified via this beautiful science of numbers. तो मैजिक ऑफ नंबर्स हम कहाँ कहाँ देख पाते हैं? डेट ऑफ बर्थ में तो हम देखते ही हैं, बिकॉज डेट ऑफ बर्थ क्या है? वो हमारा कॉस्मिक डीएनए। डीएनए, वी हैव ऑल हर्ड अबाउट डीएनए, राइट? ऑल ऑफ आवर चिल्ड्रन दे हैव द पेरेंट्स डीएनए। तो कॉस्मिक डीएनए क्या हुआ? मतलब हमारे जो डिवाइन पेरेंट्स, जो कॉस्मोस है, जो ठाकुर जी जिसे हम कहते हैं, जब डिवाइन पावर जो हमारे पास में होती है, क्योंकि सोल तो वहीं से ही आई है ना। तो क्या हम चाहते थे कि हम इस डेट पे बॉर्न हो? वो हमारे लिए फिक्स था। जिस सोल को जिस दिन धरती पे आना होता है, वो उसी दिन आती है। कितना भी आप पंडित जी से पूछ के डेट निकलवा लो, कितना भी आप ओटी बुक कर लो कि आपकी इलेक्टिव सर्जरी है, आपके घर में छोटा बच्चा आने वाला है, तो माँ की इलेक्टिव सर्जरी हमें करा ले, लेकिन कई बार होता है ना कि वो डेट्स फुलफिल नहीं हो पाते। वाई? बिकॉज उस सोल को उसी दिन धरती पे आना था। So your date of birth is the biggest source of your strengths and weaknesses. And yes, your date of birth is your cosmic DNA. बच्चा बॉर्न होने के बाद सबसे पहले होता है उसका नामकरण संस्कार। यस, तो नामकरण संस्कार में क्या करते हैं? बच्चे का नाम रखा जाता है,
बच्चे का नाम रखा जाता है सबसे पहले। तो नेम स्पेलिंग, तो जो नाम होता है वो हमारी पहचान होता है, हमारा नाम हमारी पहचान। एक सभा में एक नाम के 3-4 जन भी होंगे, एक को भी बुलाया जाएगा तो यह सब घूम के देखेंगे, बोले वो मुझे बुलाया जा रहा है। तो नेम स्पेलिंग नंबर इतना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। आपका नाम आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो उस नाम की जो स्पेलिंग है, ईच अल्फाबेट कैरीज अ न्यूमेरिक वैल्यू। तो यस, आपका नेम स्पेलिंग नंबर जो होता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो वी शुड एटलीस्ट नो कि हमारा नाम हमें एनर्जी कैसे दे रहे हैं। हम किसी को भी नाम चेंज करने के लिए नहीं बोलते, वी ओनली गिव देम रेक्टिफिकेशंस, वो भी उनकी अपनी मर्जी हो तब। यस, देन कम्स द मोबाइल नंबर, द इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम मोबाइल के बिना जी सकते हैं? नहीं। यहाँ पे कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं होगा जो आपको कभी बोल दे, यहाँ के अलावा क्या कहीं भी कोई एक बंदा ऐसा नहीं होगा जो कह सकता है मुझे मोबाइल की जरूरत नहीं। जो होते हैं विरले होते हैं, फिर वो बहुत अलग ही होते हैं, वो फिर हमारी तरह संसारिक दुनिया में नहीं रहेंगे, उनकी दुनिया ही फिर अलग होगी। यस। तो मोबाइल चलता कैसे है? आपका मोबाइल चलता है एक सिम पे, और सिम में होता है 10 डिजिट्स का एक नंबर फॉर इंडिया, लीविंग द कंट्री कोड अपार्ट। तो आपका मोबाइल नंबर क्या आपको एनर्जी देता है? यस, बहुत तगड़ी एनर्जी देता है आपको। तो क्वेश्चन आता है, लेकिन हमारा मोबाइल नंबर तो हमने चूज करके लिया है। यस, वो आपका नोशन है, वो आपकी भावना है कि आप समझते हैं कि आपने मोबाइल नंबर चूज किया है। बट सच्चाई ये है कि मोबाइल नंबर में जो नंबर्स है, वो नंबर्स ही तो आपके प्लैनेट्स है, उन्होंने आपको चूज किया है, आप उनको चूज नहीं कर सकते हो। द मोबाइल नंबर चूजेज यू, वी कांट चूज अ नंबर। जैसे द डेट ऑफ बर्थ चूजेज द सोल कांट चूज द डेट ऑफ बर्थ। उसी तरह से मोबाइल नंबर अगेन इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्सन। हम इसके ऊपर भी आएंगे बिल्कुल। उसी तरह से हमारा हाउस नंबर, व्हीकल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, एनी डेटा which is numerical gives you energy, gives you value, and that creates an impact in your life. Yes. तो ये जो हमने चीजें देखी कि हमारा न्यूमरोलॉजी ऐसे ऐसे हमारे ऊपर असर करता है, उसके पहले मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगी एक रियल टाइम स्टोरी, एक रियल लाइफ, एक रियल कैरेक्टर की स्टोरी मैं आप लोग के साथ में शेयर करना चाहूंगी। स्टोरीज आर सच, जैसे किसी की लाइफ की स्टोरी जब हम सुनते हैं तो वो चीजें, वो बातों से हम अपने आप को जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं, हम जल्दी रिलेट कर पाते हैं अपने आप को, और हम समझ पाते हैं कि यस, उनकी लाइफ में न्यूमरोलॉजी ने उनको इस तरह से हेल्प किया था, तो हमारी लाइफ में भी हमारे साथ चीजें ऐसी हो सकती है। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटीज होती है, सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, अच्छा समय आता है, बुरा समय आता है, बच्चे होते हैं, शादी होती है, इस तरह की तमाम चीजें सबकी लाइफ में होती है। तो यस, मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगी एक छोटी सी स्टोरी। बहुत साल पहले एक स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते थे, लेकिन उसमें एक बहुत स्पेशल बैच था क्लास 10 का। उसमें क्या खासियत थी, उसमें जो 15-20 जन उस बैच में, 6 15 बच्चे जो उस बैच में थे, उनमें से 8-10 का जो ग्रुप था, वो लोग नर्सरी से लेकर क्लास 10 तक वो सेम ग्रुप उसी बैच में, सेम क्लास सेक्शन रोल में चला आ रहा था। तो व्हेन दे वर ऑन द वर्ज ऑफ पासिंग देयर क्लास 10, और उसके बाद उन लोग को डिसइंटीग्रेट होना था उस स्कूल से, क्योंकि वो स्कूल सिर्फ सेकेंडरी स्कूल तक था, हायर सेकेंडरी नहीं था, तो उन लोग को अलग अलग शहरों में अलग अलग स्कूल्स में जाने का ऑप्शन मिल रहा था। उस समय व्हेन दे वर पार्टिंग विद ईच अदर, देन दे प्रॉमिस्ड ईच अदर कि आज से 10-15 साल बाद हम लोग एक जगह पे वापस यूं ही मिलेंगे, एंड हम लोग वापस से अपने ये पुराने मोमेंट्स को, पुरानी जिंदगी को वापस से रिवाइव करेंगे। हम चाहे कितने भी बिजी हो अपनी लाइफ में, हम लोग कहीं भी लोकेटेड हो, वो शहर में हो, शहर से बाहर हो, कंट्री में हो, कंट्री से बाहर हो, कितने भी हम बिजी हो, लेकिन जैसे ही उसमें से एक जन ने जिम्मा लिया कोऑर्डिनेट करने का कि हम चाहे कितने भी बिजी हो, मैं सबको मैसेज करूंगा और उस समय सबको आना रहेगा। यस। एंड ये एक मतलब आंसू भरी आंखों के साथ में, आईज वेल्ड विद टीयर्स, ऑल ऑफ देम दे पार्टेड विद अ हेवी हार्ट बट हार्ट फुल ऑफ मेमोरीज। बहुत सारी मीठी यादें और बहुत सारी खट्टी मीठी यादें वो अपने स्कूल टाइम की, अपने चाइल्डहुड डेज की, जिनके संग उन्होंने पूरा 10-12 साल एक साथ बिताया था, वो लेके वो अलग हो गए। समय बीता, समय तो जैसे मानो तुरंत ही बीत जाता है, पलक झपकते ही वो सब बड़े हो गए, अलग अलग शहरों में, कंट्री के बाहर भी सब सेटल हो गए।
एंड एग्जैक्टली 10 years के बाद वो जब वो दिन आया, जो डेट उन्होंने डिसाइड की थी, नाउ अगेन द थिंक ऑफ डेट कम्स ओवर हियर। जब हम किसी को डेट दे देते ना, तारीख दे देते, सनी देओल कहता है तारीख पे तारीख, सो तारीख इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन लोग की जो एक फिक्स की हुई डेट थी कि आज से 10 years बाद इसी डेट पर, जिस दिन हमारी फेयरवेल पार्टी हुई थी, हम वापस से मिलेंगे, द रीयूनियन डेट। एंड एज द डेट वॉज अप्रोचिंग क्लोजर, डेट के जस्ट 3 months के पहले सबके मोबाइल पे एक मैसेज पॉपअप किया। 3 महीने के बाद हम लोग को उसी स्कूल के पास में एक बहुत सुंदर एक रेस्टोरेंट बना है, वो शहर भी डेवलप हो गया, एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बना है, तो वहां पे सबको इस टाइम पे वह रेस्टोरेंट में सबको मिलना है। और उसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था, इतना ज्यादा टेक फ्रेंडली एनवायरनमेंट होने के बावजूद वो लोग आपस में इन पूरे सालों में कभी भी नहीं मिले थे। वो सब दूर दूर थे, कनेक्टेड थे वाया मोबाइल, वाया कम्युनिकेशन, वाया टेक्नोलॉजी, बट दे डिडंट मीट इन फिजिकल। यस, तो 3 months के बाद ऑल ऑफ देम वे ईगरली वेटिंग कि भाई अब मिलना है, मिलने की टाइम बिल्कुल करीब आ रही है, अभी अभी तो हमें मिलना ही है। सब वहां पे पहुंचे, एंड यस, they spent a very beautiful evening over there because the restaurant was actually very nice. वो शहर का सबसे लेटेस्ट खुला हुआ रेस्टोरेंट था, so all of them enjoyed the ambience, very nice fine ambience थी वहां पे, बहुत ही सुंदर ambience थी, म्यूजिक बड़ा ही अच्छा था, and the food was really delicious. They enjoyed the food, they laughed, they recollected the old memories, they even cried on the past days कि कैसे हम एक दूसरे को तंग करते थे, किसने किसकी कॉपी चुरा ली थी, किसने एग्जाम में चीटिंग की थी, किसकी वजह से किसी और को मार पड़ी थी, इस तरह की बहुत सारी खट्टी मीठी यादें उन्होंने वापस से जी। एंड नाउ द टाइम वॉज अगेन टू पार्ट, वापस से बिछड़ने का समय आ गया था। लेकिन अभी सिंस सब बड़े हो गए थे, फ्यू ऑफ देम वे सेटल्ड अब्रॉड, कुछ इंडिया में ही थे, कुछ अलग अलग शहरों में, इंडिया के अलग अलग शहरों में थे, बट दे वर ऑल influential people, professionals, entrepreneurs, business people, and the full gang was 15-20 लोगों का पूरा गैंग वो साथ में था। तो none of them knew, क्योंकि उस शहर में एक बंदा था जिसने ये पूरी चीजें ऑर्गेनाइज की थी, वो उसी शहर में सेटल था, उसी ने वो रेस्टोरेंट खोज के निकाला था, एंड वही सारी पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहा था। उस बंदे ने कहा रुक जाओ, अभी जाने का टाइम हो रहा है, मगर रुक जाओ, आज इसमें से एक जन का जन्मदिन था जो किसी को याद ही नहीं था। उनमें से एक बंदे का जन्मदिन था, वैसे भी वो उनका चहेता हुआ करता था, पहले भी क्लास में एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हुआ करता था उनके लिए। तो तुम लोग सब भूल गए, मगर मैं नहीं भूला, आज इसका जन्मदिन है, हम लोग पहले इसका केक कट करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे, ठीक है। केक के नाम पे सब अलर्ट होके वापस बैठ गए। उसने कहा वेटर जाइए आप केक लेके आइए, जो केक मैंने आपको ऑर्डर दिया था वो केक लेके आइए। एंड यस, द सरप्राइज ऑफ द इवनिंग वाज अनवेल्ड, एक बहुत सुंदर पेनाटा केक एकदम बिल्कुल ट्रॉली में रख के वेटर लेके आता है। जिसका जन्मदिन था वो तो मानो खुशी के मारे फूला ही नहीं समा रहा था। अरे मेरे कमीने दोस्त, तुम लोग को याद रहा मेरा जन्मदिन? 3 घंटे में तुम लोगों ने बात नहीं की मेरे जन्मदिन की, अब तुम लोग मेरा केक कटवाओगे? ओ माय गॉड, वो इतना खुश, मतलब लगा कि मानो नाचने ही लग गया वहां पे, इतना ज्यादा खुश। एंड द केक केम एंड द ग्रैंड सेलिब्रेशन बिगैन। उसको उसको पेनाटा केक की क्या स्पेशलिटी होती है, एज वी ऑल नो, इट इज द केक इज कवर्ड बाय चॉकलेट बॉल, एंड एक छोटे से हैमर से उसको हैमर करके केक का ऊपर का बॉल को तोड़ के हटाना पड़ता है, फिर अंदर से वो केक निकलता है, ऑल मॉडर्न थिंग्स एंड ऑल दैट, ठीक है। तो उसने किया, खोला, ऑल मतलब सब कोई उसको एकदम झुक के देख रहे थे कि बस अब केक कटा, अब जब तुरंत हम लोग को केक खाना है, अटैक मारना है केक के ऊपर। द केक वॉज ओपन्ड, तोड़ के उसको खोला गया, एंड वो कैंडल वॉज ब्लोन आउट, एंड जैसे वो नाइफ लगाने ही वाला था केक को काटने के लिए, इतने में एक बंदा जो उसके बिल्कुल बराबर में खड़ा था, हर चीज में उसको हेल्प कर रहा था कि तू कैंडल ब्लो कर, ये कर, सामान वगैरह पकड़ा रहा था उसको, उसी का फ्रेंड, वो जोर से चिल्लाया, इतना जोर से चिल्लाया कि उसकी चीख ही निकल गई मानो, और सब हतप्रभ होके, सब एकदम आश्चर्यचकित होके उसको देखना शुरू कर दी। वो ऐसे उसने क्या बात कह दी, वो चिल्ला के बोला कॉकरोच, जोर से वो चिल्लाया कॉकरोच। ओ माय गॉड, कॉकरोच का नाम सुनते ही सारे एकदम अलर्ट हो गए, कॉकरोच कहाँ है कॉकरोच? तो वो बस पॉइंट आउट किया कॉकरोच, केक के ऊपर कॉकरोच, और बंदा सोफे पे मानो बेहोश जैसा हो गया। मतलब वो उस चीज को ले ही नहीं पाया कि वो केक के ऊपर कॉकरोच बैठा हुआ है। एंड एक्चुअली जब उन लोगों ने ध्यान से देखा, वो केक के ऊपर चॉकलेट के फ्लावर्स लगे हुए थे, और उस फ्लावर के बगल में बिल्कुल वैसा ही ब्राउन कलर का एक तो कॉकरोच वहां पे विराजमान हो रखा था।
और वो केक फूटा, वो कैंडल जली, तो वो एक्टिव हो गया वापस से, वो अपने बेहोशी की अवस्था से एक्टिव हो गया, एंड बस वो फड़फड़ा के उड़ने ही वाला था। अब तो सब में अफरा तफरी मच गई। अब सबका भयंकर रूप से रिएक्शन आने लग गया। जिसका बर्थडे था वो एकदम आग बबूला, जोर से चिल्लाया, कॉल द मैनेजर, वेटर कॉल द मैनेजर। जो बंदा ऑर्गेनाइज कर रहा था उसको भी बहुत जोर गुस्सा आ रही, मेरा पार्टी खराब कर दिया इसने, केक पे कॉकरोच कहाँ से आ गया। वेटर आया तो उसको बोला कि उसमें जोर से एकदम चीख के बोला, कॉल द मैनेजर। मैनेजर आया बेचारा दौड़ा दौड़ा, यस सर, हाउ मे आई हेल्प यू। तुमने मेरी बिल्कुल पार्टी खराब कर दी। तुम देखो केक के ऊपर कॉकरोच लगा हुआ है। कहाँ सर कॉकरोच, कहाँ है कॉकरोच। अब कोई भी इंसान तो यही बोलेगा ना, कॉकरोच देखना है मुझे। तो कॉकरोच थोड़ा बैठा हुआ था वहां पे, तो उड़ गया था कब कहीं। जैसे ही उसने एक वैलिडेशन मांगा, कहाँ है कॉकरोच, उनमें फ्रेंड में से एक बंदा आगे आया, उसकी कॉलर पकड़ी और कस के एक थप्पड़ उसके मुंह पे चिपका दिया। तुझे वैलिडेशन चाहिए कहाँ है कॉकरोच, अब तुझे दिखाता हूँ कहाँ है कॉकरोच। अब हर इंसान का अपना एक अलग रिएक्शन। एक ने तो मारपीट शुरू कर दी, एक चिल्ला रहा है बिल्कुल, मैनेजर को बुलाओ मेरी पार्टी खराब हो गई, मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम लोग से पूरे पैसे वसूल करूंगा, एक बोल रहे। उनमें से एक का तो दिमाग ही अलग था, एकदम बिल्कुल इनोवेटिव थिंकिंग। बोल रहे नहीं नहीं, इसको कुछ मत करो, हम लोग खाली इसको कंप्लेन करेंगे, फूड क्रिटिक को बुलाएंगे, इसकी कंप्लेन करेंगे एफएसएसआई में और इसका लाइसेंस ही कैंसिल करा देंगे। बंदा दोबारा किसी स्टेट में, किसी शहर में रेस्टोरेंट खोलने लायक ही नहीं रहेगा। तो एक बंदा भाग के किचन में जा रहा है, जैसे उसने कहा कि भाई किचन वालों की गलती है, वहीं पे कुछ रहा होगा, बिकॉज हम लोग ने तो अच्छे से ही दिया। तो वो भाग के किचन में चला गया रिसर्च करने के लिए, अच्छा वहां पे कॉकरोच का कुछ होगा, मैं देख के आऊं कि वहां पे कुछ गंदगी है क्या। जिसका बर्थडे था, जिसके लिए उसके सारे दोस्त झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे, वो कह रहा है हम लोगों ने जो खाया पिया वो तो अलग, उसका तो बिल हम देंगे ही नहीं, इस केक का बिल नहीं देंगे, प्लस हम लोग तुमसे मुआवजा और लेंगे। इन सबके बीच में उसको अपना पैसे वाला एंगल ही दिखाई दे रहा है। अब इतना शोर शराबा देख के जो होटल में और गेस्ट थे, उन लोग भी आके देखने लगे, अरे इतना झगड़ा क्या चीज के लिए हो रहा है, तो होटल बहुत नामी होटल है, इतना लड़ाई झगड़ा यहाँ पे क्या चीज कर रहे हैं, यहाँ तो बहुत अच्छा फूड है, कभी ऐसे कंप्लेन नहीं सुना। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ऐसा सुन के उनमें से एक बंदा बोल रहा है, देखो सब कोई हम लोग को आके देख रहा है, उसको बड़ी पड़ी थी कि बाहर वाले लोग क्या करें। कुछ लोगों को होता है ना, क्या उनको रोग होता है, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। कुछ लोगों का ये रोग बड़ा तगड़ा होता है, अरे बाहर का आदमी क्या बोल रहा है, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। सब कोई हम लोग को ही देख रहे हैं। जो क्राउड था उसमें से एक लेडीज का, मतलब लड़कियों का भी एक गैंग था। अब वो उन लोग को देख रही, तो वो और उसको प्रॉब्लम हो रहा है कि अरे हम लोग को नोटिस किया जा रहा है, कोई वीडियो बना रहा है उन लोग का, नोटिस किया जा रहा है हम लोग को। मारपीट चालू हो गई, कोई पैसे मांग रहा है, कोई किचन में जा रहा है, तो कोई बोल रहा है तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद करवा देंगे, तो कोई बेहोश होके गिद्दा पे पड़ा है। इन सब के बीच में एक बंदा जो अभी तक से चीजों को बहुत ऑब्जर्व कर रहा था, एंड जो उसको वेटर को जो पीटा गया, वो उसको बड़ा खराब लगा कि वेटर को क्यों पीट रहे हो यार, इसका क्या गलती है, ये थोड़ी ना केक बनाया था जो इसका गलती, तो खाली सर्व करने वाला बंदा है। तो उसने अपने फ्रेंड्स को बोला, भाई तुम लोग इसके संग मारपीट मत करो। क्यों मारपीट कर रहे हो उसके संग। नहीं, इसकी वजह से हुआ, इसको केक देख के लाना चाहिए था। तो बोले कैसे देखता, पिनाटा केक, उसके अंदर में घुसा हुआ कॉकरोच, देखता कैसे, वो ऊपर में तो था नहीं। इस तरह से बड़ा ही एक ठो, मतलब झमेला वाला सा माहौल हो गया, बड़ा ही एक ठो अनकैनिंग से सिचुएशन हो गई। उसमें लगा कि सबको, हे भगवान ये क्या हो गया, इतनी अच्छी पार्टी चल रही थी, अचानक से ये पार्टी स्पॉइल हो गई। सो यस, द स्टोरी कंटिन्यूज। मैं समझ रही हूँ सबको स्टोरी में बहुत मजा आ रहा था, बट यस द स्टोरी कंटिन्यूज। अब ये क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछती हूँ कि अब क्या होने वाला है। क्या उसका लाइसेंस कैंसिल करा दिया जाएगा? क्या फूड क्रिटिक को फोन करके बुलाया जाएगा? क्या वेटर को जेल भिजवाया जाएगा? क्या होटल के मैनेजर को स्यू किया जाएगा? क्या होटल का मैनेजर उन लोग को पैसे दे के रफा दफा कर देगा? क्या जो लोग उनका वीडियो बना रहे थे वो उसको सोशल मीडिया पर डाल देंगे, और जो एक बंदा बोल रहा था कि मत करो, उसकी बात सुनी जाएगी? आखिर क्या होगा और क्यों होगा, क्वेश्चन ये है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमें देंगे हमारे ग्रह नक्षत्र, जो कि न्यूमरोलॉजी में मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। आप लोग कोई कुछ कहना चाहते हो स्टोरी के ऊपर?
Anyone wants to say something? जैसे कि हमने मैम, देखा। हाँ जी शर्मिला बताइए। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ मैम कि एक छोटी सी चीज कितना बड़ा रूप ले लिया। हाँ, वही। छोटी सी चीज इतना बड़ा रूप ले ले, यही तो होता है हमारे आम जिंदगी में भी। तो ऐसी चीज होती है ना, तिल का ताड़ बन जाता है, राई का पहाड़ बन जाता है। तो क्यों होता है ऐसा? जहाँ पे 15-20 जन थे, मैटर प्रॉपरली सॉल्व भी हो सकता था। क्यों हम्म। किसी ने इतना रिएक्ट किया कि उसको पकड़ के पीट ही दिया? तो किसी ने बोला फूड क्रिटिक को फोन कर लेंगे, तो वो इंसान खुद नहीं करता है। इंसान का जो स्वभाव होता है, उसका जो नेचर ग्रह होता है, करवाते हैं। हाँ, it is ruled by their ruling planets, which are known as the basic and the destiny number, all the Mulank and the Bhagyank, or the driver and the conductor, or the psyche number and the life path number. Yes. So that is about numerology. So numerology से आप इतना in depth समझ सकते हो कि किस सिचुएशन पे एक इंसान किस तरह से रिएक्ट करेगा, किस तरह से उसकी भावनाएं वहां पे चेंज होगी, तो उस समय पे उसको क्या करना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो उनको धमकी दे रहा है, हम आपको स्यू कर देंगे, वेयरएज वो वेटर भी तो जाके लेबर यूनियन में कंप्लेन कर सकता है कि इस बंदे ने मेरे पर हाथ उठाया, इसको अरेस्ट कर लो। अगर उस समय उसकी कुंडली में, दशाओं में बंधन योग आया हुआ होगा, 100% वो आदमी एक बार तो जेल पहुंच ही जाएगा, भले ही फिर वो अपने रुतबे के कारण जेल से बाहर आ जाए। तो ये हमको हमको कैसे पता चलेगा? हमको पता चलेगा हमारी दशाओं से। जो कि हम न्यूमरोलॉजी जब पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है दशाएं किसकी आई हुई है। कौन सा प्लैनेट आपका ज्यादा एक्टिव हो गया? मंगल बहुत एक्टिव हो गया, मारपीट करने पे आ गया इंसान। मगर अगर साथ में राहु जुड़ गया, पक्का उसको जेल पुलिस थाना तो पहुंचा ही देगा। तो किसका मंगल भारी होगा? कौन मंगल से रूल्ड होगा? जो लोग 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख को बॉर्न होते हैं, या फिर जिनके डेस्टिनी नंबर में 9 नंबर आता है, उनका मंगल बहुत स्ट्रांग होता है। एंड वो लोग अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हाथापाई पे बिल्कुल आ जाएंगे। यस। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं आज 2 दिन की क्लासेस में। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं आप लोग को एक छोटा सा मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसे हम 1 से लेकर 9 तक जो हमारे ग्रह नक्षत्र है, किस तरह से हमारी लाइफ में इफेक्ट डालते हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो आप लोग सबको अपने अपने डेट ऑफ बर्थ को निकाल के बैठ जाओ। डेट ऑफ बर्थ सबको सबको आप लोग लिख लो कॉपी में। तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा कि आपका मूलांक एंड भाग्यांक क्या है। मूलांक क्या होता है? मूलांक इज द डे, आपका मूल, आपकी रूट, यानी कि आपका बेसिक नंबर, यानी कि और डे ऑफ बर्थ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज की डेट लें, आज की डेट है 19 तारीख, 19 फरवरी 2025। आज के दिन बहुत सारे बच्चे पैदा हुए हैं। तो जो बच्चे 19 तारीख को पैदा हुए वो उनका मूलांक हो गया। लेकिन न्यूमरोलॉजी में हर नंबर को हम सिंगल नंबर पे लेके आते हैं। तो 19 को हम ऐड करेंगे, 1 + 9 कितना हो गया? 10 हो गया। फिर 1 + 0 करेंगे, कितना आया? 1। तो आज जो बच्चा पैदा होगा उसका मूलांक होगा 1। तो उसके अंदर अन का जो प्लैनेट है सूर्य, उसके अंदर सूर्य की क्वालिटीज होगी। तो मैं आप लोग को ये बताऊंगी कि सूर्य वाले जो लोग होते हैं वो लोग कैसे होते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं उन लोग, कैसे उनकी भावनाएं होती है, किस तरह का बिहेवियर वो लोग करेंगे, इसके बारे में मैं आप लोग को ब्रीफली बताऊंगी। तो जिसका जो मूलांक है आप लोग उसको बिल्कुल कैलकुलेट कर लीजिए। सबने अपना अपना मूलांक कैलकुलेट कर लिया? उसके अलावा हमारा एक और नंबर होता है, वो हम होता है हमारा भाग्यांक। भाग्यांक यानी कि मूलांक तो हुआ जिसमें हम बॉर्न हुए, भाग्यांक होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ का सम टोटल। जैसे आज की डेट हम वापस से ले, 19 फरवरी 2025, इसको अगर हम पूरा ऐड कर रहे हैं तो ये आ रहा है 3। उसी तरह से अपन डेट ऑफ बर्थ ऐड करो, सिंगल नंबर पे लेके आओ, तो जो सिंगल नंबर आएगा वो आपका होगा भाग्यांक। भाग्यांक यानी कि भाग्य, यानी कि डेस्टिनी, यानी कि लाइफ पाथ नंबर। तो आपका आने वाला जीवन कैसा रहेगा? आने वाला जीवन आपका कैसा रहेगा? क्या क्या इंसिडेंट्स होंगे आपकी लाइफ में? कैसी कैसी बीमारियां होंगी आपको? क्या क्या चीजें आप कर सकेंगे? कैसा आपका करियर, प्रोफेशन एक्सेट्रा रहेगा आगे का जीवन? तो यस, वो हम जान सकते हैं आपके भाग्यांक से। So I'll just give 2 minutes for everyone to calculate and take out their basic and destiny number.
आपका हो गया सीमा जी? हाँ, पूर्णांक भाग्यांक आपने किया, क्या आया आपका? हेलो। हाँ जी। हाँ, मूलांक इज 3 एंड भाग्यांक 2। ओके ग्रेट। और सबका? शर्मिला आपका? अच्छा कोई बात नहीं, जिसका जो भी आया है मूलांक और भाग्यांक, बिल्कुल आप उसको कैलकुलेट करके रखो। तो अब हम समझते हैं कि आपका जो नंबर, आपका जो जो नंबर्स के बारे में बोलूंगी, 1 से लेकर 9 तक हमारे प्लैनेट्स होते हैं, उसके बाद वापस से कंपाउंड नंबर आ जाता है। तो हमारी जितनी भी डेट ऑफ बर्थ होती है वो 1 से लेकर 9 के बीच में ही आती है। यस। तो हम जानेंगे कि अगर आपका जो नंबर है नंबर 1, अगर आपके मूलांक या भाग्यांक दोनों में से एक में भी अगर आ रहा है, तो आपको वो कैसी क्वालिटीज देता है। यस। यस। तो हमारा जो पहला ग्रह होता है, हमारा जो पहला प्लैनेट होता है, वो होता है सूर्य। सूर्य सबसे पहला प्लैनेट, इसलिए उसको राजा भी कहा जाता है। तो ये लोगों के अंदर बिल्कुल राजा वाली क्वालिटीज होंगी। राजा की तरह ये लोग बिहेव करेंगे, लीडर्स होंगे, अथॉरिटेटिव होंगे, उसके साथ ही साथ बहुत कॉन्फिडेंट भी होंगे, बिकॉज जो लीडर होता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, तभी तो वो लीडर होता है ना। इन लोगों को फादर के साथ भी जोड़ा जाता है। अगर कोई फीमेल के चार्ट में भी नंबर 1 आता है तो उसके अंदर डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज बहुत ज्यादा होगी। फादर को जो फादर जो होते हैं उनको फैमिली का लीडर कहा जाता है, बिकॉज ही इज द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में इसी तरह से हम देखते हैं, द प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली। उनकी बात सुनी जाती है, उनके डिसीजंस को ओबे किया जाता है। कोई भी बात होती है, मम्मी को भी बोलेंगे तो मम्मी बोलेगी ठीक है, पापा से डिस्कस करके आपको बताता है, पापा से पूछ लो एक बार, या वो खुद जाएगी पूछने के लिए। सो फादर इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस। तो पहला नंबर जो होता है वो हमारे फादर को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, और रिप्रेजेंट करता है हमारी गवर्नमेंट को। तो कौन होते हैं ये लोग जो प्लैनेट सूर्य, मतलब जो सूर्य ग्रह सूर्य से रूल्ड होते हैं, जिनके मूलांक में 1 आता है या भाग्यांक में 1 आता है? मूलांक में 1 किनके आता है? 1, 10, 19 और 28 ऑफ एनी मंथ। 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख को जो लोग बॉर्न होते हैं, उनका मूलांक होता है 1, या फिर भाग्यांक में जिनके 1 आता है। तो ये लोग कैसे होंगे? बॉर्न लीडर्स। इनका क्या होता है, हम जहाँ पे खड़े हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। इनका ऐसा ही मोटो होता है, अमिताभ की मूवीज में आता है ना, कभी खुशी कभी गम, कह दिया जो कह दिया। अपनी वाइफ की बात वो बिल्कुल नहीं सुनता था। बेटे ने लव मैरिज करी, घर आ गया, वो उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा। उसने करी उसकी विल के अगेंस्ट, उसको बताए बिना खुद से कर ली, उसको बर्दाश्त के बाहर। वेरी वेरी अथॉरिटेटिव, जो वो कह रहा है वही होना चाहिए था। जया बच्चन ने मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहता था जो कह दिया सो कह दिया। बिल्कुल इनका एटीट्यूड उसी तरह का होगा। अब सूर्य कैसा प्लैनेट है? बेहद गर्म प्लैनेट है, वेरी वेरी हॉट प्लैनेट। तो उससे क्या होता है, इन लोगों का दिमाग भी बहुत गर्म रहेगा, तुरंत गुस्सा हो जाएंगे, तुरंत उनको कोई भी चीज का बुरा लग जाएगा। यस। सूर्य क्या करता है, वो हमें लाइट एंड लाइफ देता है। तो ये लोगों को बहुत रोशनी में रहने की आदत होगी, अंधेरे में ये लोग बिल्कुल नहीं रह सकते। इनका काम भी कुछ इस तरह का होगा जहाँ पे बहुत रोशनी की जरूरत होगी। तो एक प्लैनेट हमें कितना कुछ बता सकता है, कितनी सारी चीजें होती है एक प्लैनेट से समझने के लिए। तो एक इंसान को खाली अगर हम उसका मूलांक भी देख ले, किस तारीख को वो इंसान बॉर्न है, तो यस, हम उसके बारे में बहुत सारी चीजें हम बता सकते हैं। पूरा उसका हिसाब किताब खोल के रख सकते हैं हम लोग। अब जैसे इसमें थोड़ी बीमारियों के बारे में भी हमें पता चलता है। सूर्य क्या होता है? रोशनी वाला प्लैनेट है, गर्म दिमाग वाला, तो इनको गुस्सा जल्दी आएगा। बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा आएगा तो क्या होगा? प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी इनको।
सूर्य की तेज रोशनी से आंखें खराब हो जाती है। हम ऐसे बोलते हैं सूर्य की रोशनी में बहुत तेज देखोगे सूर्य के सामने आंखों से पानी गिरने लग जाएगा, आंखें खराब हो जाएगी। तो यस, इनकी आंखों पे चश्मे छोटी उम्र से ही आ जाते हैं, 1, 10, 19, 28, छोटी उम्र से आंख में चश्मा आ जाएगा। ज्यादा धूप में जाएंगे तो सन स्ट्रोक हो जाएगा इनको, धूप लग जाएगी माथे में, सर दुखेगा बहुत ज्यादा। इस तरह की चीजें हम सूर्य वाले लोगों के साथ में बिल्कुल देख सकते हैं। हमें समझ में आता है कि यस, ये बंदा सूर्य से रूल्ड है। अपनी बात के आगे किसी की बात की वो सुनेगा ही नहीं। तो हमारी जो स्टोरी थी, अभी आप ये पूरे प्लैनेट्स के बारे में जानकारी ले लो, तो हमारी जो स्टोरी थी उसमें सूर्य वाला कौन था, ये चीजें भी हम समझ पाएंगे। मैंने आपको स्टोरी इसीलिए सुनाई कि जब हम स्टोरी के माध्यम से किसी चीज को समझते हैं तो हमें बहुत जल्दी चीजें समझ में आती है। मैम, जिन्होंने थप्पड़ मारा था। सूर्य राजा है, तो वो मारपीट अपने हाथ से नहीं करेगा, बंदों को बोलेगा मारो इसको या इसको करो। तो जिन्होंने थप्पड़ मारा था वो सूर्य नहीं था। जो सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा था, जिसकी अपनी टीम थी, जिसने वो रेस्टोरेंट में सब कुछ आगे से आगे करके रखा था, वो सूर्य था। अच्छा अच्छा अच्छा। जो चिल्लाया वेटर को बुलाओ, क्योंकि वो अपने आप से कुछ नहीं करेगा, वो खाली ऑर्डर्स देगा। ठीक है ना? ओके गुड, ओके। गुड ट्राई, बट आई वुड से थैंक यू सो मच फॉर ट्राइंग। इट्स ओनली मैम, लीडर क्वालिटी, सब कुछ लीड करके सब कुछ किए वो। हाँ जी, हाँ जी। इट्स ऑलवेज इन ट्राइंग दैट यू लर्न मोर। गुड एफर्ट्स, गॉड ब्लेस। देन वी कम टू प्लैनेट नंबर 2। प्लैनेट नंबर 2 हमारा क्या है? एक नंबर अगर राजा है तो 2 नंबर रानी है। एक नंबर अगर फादर है तो 2 नंबर मदर है। एक नंबर अगर बहुत बेहद गर्म है, उससे बहुत ज्यादा तेज रोशनी है, तो चंद्रमा कैसा है? वो कम गर्म है, शीतल है, सुंदर है, उसकी रोशनी भी उसी की तरह बहुत शीतल है। एक नंबर अगर संसार को पूरी तरह से रोशनी देता है दिन के समय, तो 2 नंबर रोशनी अंधेरों में देता है। जब कोई आपको रोशनी नहीं दे रहा हो तब चंद्रमा ऊपर से चमक रहा है आपके लिए। तो एक नंबर अगर अथॉरिटेटिव होगा तो 2 नंबर बहुत लविंग एंड केयरिंग होगा। एक नंबर वाला बोलेगा मैं जहां पे खड़ा हूं लाइन वहीं से शुरू होती है, तो 2 वाला बोलेगा मान जाओ ना। क्या होगा मान जाओगे तो? झुक जाओ थोड़ा सा। जैसे कि जया बच्चन अमिताभ बच्चन को कभी खुशी कभी गम में बोलती थी, मान जाइए ना, बच्चा है, क्या हो गया, अगर अपने आप से शादी कर भी ली तो क्या हो गया। वेरी सेंसिटिव, वेरी केयरिंग, बात बात पे आंसू बहा देने वाले। कौन होते हैं ये लोग? कौन कहता है राजेश खन्ना की तरह पुष्पा आई हेट टीयर्स, एंड पूरा इंडिया रोता था उसके इस डायलॉग के ऊपर। जो भी थोड़े पुराने लोग हैं यहाँ पे, लक्ष्मी अंकल जी, सीमा जी, जिनका चेहरा मैं देख पा रही हूँ, जो थोड़े पुराने लोग हैं, डेफिनेटली वो इससे रिलेट कर पाएंगे। यस, 2 नंबर, 11 नंबर, 20 नंबर, 29 नंबर, सेकेंड, 11th, 20th and 29th of any month, people born on these dates of any month, they are ruled by this beautiful, loving, caring, sensitive planet moon चंद्रमा। चंद्रमा की तरह बहुत ही सुंदर, शीतल एकदम स्वभाव होगा उनका। सबसे बहुत प्रेम से बात करेंगे। आप इनके घर जाओगे, अपने हाथ से आपको भोजन बना के खिलाएंगे। आपको बोलेंगे अरे आप वहां मत बैठिए, यहाँ बैठिए, यहाँ एसी की हवा तेज आती है, अगर आप बहुत गर्मी में भरे हुए गए हो तो। वेट टिश्यू ला के देंगे आपको, ठंडा शरबत पिलाएंगे आपको। सब कुछ खुद अपने हाथों से करेंगे, जैसे कि एक माँ करती है। बच्चा स्कूल से आते ही माँ काम पे लग गई, पानी पी ले, जूस पी ले, ठंडा शरबत पी ले, फ्रेश हो जा, रिलैक्स हो जा, गरम खाना देंगे उसको, एसी चला के रखेंगे पहले से। मदर, मदरली क्वालिटीज। मदर कैसी होती है? वेरी इंट्यूटिव। बच्चा स्कूल में कुछ उसको हुआ है, उसको कुछ चोट लग गई, उसका सर दुख रहा है, माँ को घर बैठे इंट्यूशन आ जाएगा, आज उसको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हुआ है आज तो। हस्बैंड ऑफिस में है, वहां उनको कुछ प्रॉब्लम हुई है, वाइफ को घर बैठे इंट्यूशन आ जाएगा, उसकी मम्मी को घर बैठे इंट्यूशन आ जाएगा, कुछ हुआ है उसके साथ में। वेरी इंट्यूटिव, पूर्वाभास जिसे हम कहते हैं, एंड वेरी इंसाइटफुल ऑल्सो। लोग इनके पास आते हैं सलाह मशवरा लेने के लिए, क्योंकि ठंडा दिमाग है ना, ठंडे दिमाग से सलाह मशवरा जो देते हैं, वेरी इंसाइटफुल। तो उनके वो इंसाइट्स बहुत लोगों के काम आते हैं। डिसीजन मेकिंग एक का हाई है, लेकिन इंसाइट्स 2 के हाई है। दोनों की क्वालिटीज बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन दोनों बिल्कुल साथ में अगर आ जाए किसी चार्ट में तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हैं।
इंसान एक की तरह लीडर भी होगा और दो की तरह शांत भी होगा। तो दिखेगा लोगों को शांत है, लेकिन अंदर में इतना कॉन्फिडेंस होगा कि वो अपना काम बिल्कुल कर लेगा। यस। तो रानी के लिए हम हमेशा कहते हैं रानी इज द पावर बिहाइंड द थ्रोन, शी इज द किंग मेकर। माँ अगर घर में ना हो तो घर घर नहीं लगता। माँ से घर है, घर से माँ है। तो जब भी हम घर के बारे में सोचते हैं, वी ऑलवेज थिंक ऑफ आवर फीमेल काउंटर पार्ट्स। घर में कोई ना कोई फीमेल होती है तो वापस घर जाने का मन करता है, चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, बेटी हो। कोई भी फीमेल काउंटर पार्ट आपकी लाइफ की जो आपसे बहुत प्रिय है, आप समझो वो आपकी लाइफ का चंद्रमा है। यस। सिंस ये लोग इतने लविंग केयरिंग होते हैं, इतने इंट्यूटिव होते हैं, जैसे कि मैंने कहा आंसू इनकी आंखों की कोर पे ही रखे होते हैं। जरा सा किसी ने कुछ कह दिया, बुरा लग गया, आंख से आंसू बहना शुरू हो जाएंगे। तो दीज पीपल, इनकी बीमारी अगर क्या होगी, दीज पीपल कैन बी ओवर इमोशनल ऑल्सो। जहाँ पे इमोशनल होने की जरूरत नहीं है वहां भी ये लोग इमोशनल हो जाएंगे, और इमोशनल होके ये लोग अपने काम अपने हाथ से खराब कर सकते हैं। इनसे झूठ बोल के भी कोई पैसे ले सकता है, इमोशनल साइड दिखा के। वो काम एक्चुअल में, वो मुसीबत एक्चुअल में थी नहीं। अब कोई एम्प्लॉई है, वो मुसीबत थी नहीं उन्होंने, लेकिन पता है कि बॉस पैसा दे देगा, थोड़ा रोएंगे धोएंगे तो बॉस पैसा दे देगा, तो यस इमोशनल साइड दिखा के पैसे ले ली। घरों में भी होती है ये सब चीजें। बच्चा रो धो के, मम्मी मेरे को टीचर ने बहुत मारा तो इसलिए मेरा मार्क्स कम आया, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो ये इनका प्रॉब्लम एक हो सकता है कि दे बिलीव अदर्स वेरी इजीली। फिर इनको किसी भी बात का, सेंस ये लोग बहुत सेंसिटिव है तो बहुत रिएक्टिव भी हो जाते हैं लोग, किसी भी बात का इनको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। बुरा लगने से क्या होता है, दे बिकम वेरी सेंसिटिव, वेरी रिएक्टिव, दे मे ऑल्सो गो इन टू डिप्रेशन। जैसे घर में किसी की मौत हो गई या कोई बड़ा इनको किसी बात का सदमा लग गया, इनको उससे उभरने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। दे कैन बिकम डिप्रेसिव। दे आर द पीपल हु कैन कमिट सुसाइड, बिकॉज वो बहुत जल्दी लाइफ से हार भी मान लेते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स इनको जैसे सूर्य में अगर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, चंद्रमा में लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ब्लड का प्रेशर लो कब होता है, जब इंसान को लगता है कि उसकी लाइफ में और कुछ करने के लिए है नहीं। तब उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, बॉडी में कम उसके वो है, कम प्रेशर है। यस। सो दैट वाज अबाउट मून। तो सीमा जी ने भी बताया था आपका भाग्यांक जो आता है नंबर 2 पे आता है। यस मैम। तो आप रिलेट कर पा रहे हो अपने आप से? हाँ, कुछ हद तक। ओके। क्योंकि और भी नंबर्स होते हैं ना चार्ट में, मूलांक भाग्यांक मगर हमारे मेजर नंबर्स होते हैं। तो और अगर हमें समझना होता है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ चार्ट एनालिसिस हमें समझनी होती है, तो हमें उसके लिए पूरा न्यूमरोलॉजी समझना होता है, द फुल एंटायर प्रोफेशनल कोर्स जब हम करते हैं ना, तब उन चीजों को दशा सिस्टम से भी हम देख पाते हैं। कोई इंसान जो कि बहुत सेंसिटिव था, बहुत केयरिंग था, अचानक से अब वो कुछ दिनों से इतना ज्यादा ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है जैसे उसके अंदर कोई फीलिंग्स ही ना हो। दशाओं का भी फर्क पड़ता है। किस समय आपका तो जो चार्ट है, जो आपका नेटल चार्ट है, वो तो फिक्स्ड बर्थ चार्ट है ना। प्लैनेट्स उसमें आते जाते रहते हैं, इन ट्रांजिट प्लैनेट्स उसमें विचरण करते रहते हैं। तो गोचर में क्या आया हुआ है, गोचर में जो प्लैनेट आएगा उसका प्रभाव उन प्लैनेट से पड़ने लग जाएगा। जैसे आपके घर में आप लोग 4-5 जन रह रहे हैं, आपका कोई गेस्ट आते हैं, आपके घर 2-3 गेस्ट आ गए बाहर से, तो उनके आने से घर के जो और लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल फर्क आने लग जाएगा। तो वो ट्रांजिट, वो जो गोचर और प्लैनेट्स का आपके प्लैनेट्स पे आता है, प्रभाव पड़ता है, उससे भी इंसान के लाइफ में, स्वभाव में, व्यवहार में, उनकी जिंदगी में बहुत मेजर फर्क वहां से आने लग जाता है। यस। ओके। सो नाउ वी कम टू नंबर 3, प्लैनेट नंबर 3, जो कि रूल्ड है देव गुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर से। जैसा कि हम नाम देख पा रहे हैं, 1 नंबर राजा है, 2 नंबर रानी है। राजा और रानी को अब सलाह मशवरे की जरूरत है, तो वो किसके पास जाएंगे, वो देव गुरु बृहस्पति के पास जाएंगे। किसी भी तरह का कोई स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना होगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना होगा, देव गुरु बृहस्पति के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही नॉलेजेबल है, स्पिरिचुअल है, जो भी सलाह देंगे अच्छी सलाह देंगे, विजडम है उनके अंदर बहुत ज्यादा।
बहुत ही क्रिएटिव है। अगर एक एक तरह से समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो कुछ और सोचेंगे, हाँ इससे समस्या का समाधान हो जाए। स्कैटर्ड है तो बहुत सारे काम एक साथ में कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, मल्टीटास्किंग वो लोग कर सकते हैं एक बार में। एक बार में आप उनको 4 काम बता तो यस वो 4 काम एक साथ में कर लेंगे। तो ऐसे होते हैं हमारे देव गुरु बृहस्पति। उनको कुल गुरु आचार्य का दर्जा दिया गया है। प्लैनेट नंबर 3 यानी कि जुपिटर। एंड कौन होते हैं ये लोग? पीपल हु आर बोर्न ऑन द 3rd, 12th, 21st और 30th यानी 30 तारीख ऑफ एनी मंथ, रूल्ड बाय दिस ब्यूटीफुल प्लैनेट देव गुरु बृहस्पति। फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ क्रिएटिविटी एंड स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म विजनरीज होते हैं। सब इनके पास सलाह मशवरा के लिए भी आते हैं। दे हैव द एनर्जी ऑफ टीचर्स। इट इज ऑल्सो द बिगेस्ट प्लैनेट। देव गुरु बृहस्पति सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे प्लैनेट सिस्टम का, हमारे सोलर सिस्टम का भी। सिंस ये सबसे बड़ा प्लैनेट है तो ऐसा भी कहा जाता है कि यस इनकी ईगो भी बड़ी होती है, क्योंकि हर प्लैनेट में पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव, नेगेटिव, वेरी नेगेटिव, सब तरह की क्वालिटीज होते हैं। कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं होता कि जो पूरी तरह से पॉजिटिव हो या जो पूरी तरह से नेगेटिव हो, पूरी तरह से खराब हो या पूरी तरह से अच्छा। ऐसा हो ही नहीं सकता, विधाता ने वैसा किसी को बनाया ही नहीं। तो हमारे ग्रह नक्षत्र भी बिल्कुल वैसे नहीं हो सकते। यस। तो हम देखते हैं कि इसमें इनकी ईगो बड़ी होती है। ईगो बड़ी होने के कारण कभी कभी ये अपने दुश्मन खुद भी बन जाते हैं। तो उसकी प्रॉब्लम्स ये लोग फेस करना शुरू कर दें। जुपिटर जो है वो रूल करता है हमारे बॉडी के सबसे बड़े ऑर्गन लिवर को। लिवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो उसको रूल करता है प्लैनेट जुपिटर। तो उससे इनको प्रॉब्लम्स होगी तो क्या होगा? लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब पेट खराब होना, अनपची, इंडाइजेशन, हाइपर एसिडिटी, गैस, स्किन रैशेस, पिंपल्स, इस तरह की बीमारियां इनको हो सकती है। लिवर से रिलेटेड होता है डायबिटीज, तो डायबिटीज भी हो सकता है इनको। बीमारियों का चैप्टर बहुत बड़ा है और भी बहुत सारी चीजें कवर होती है हमारे प्रोफेशनल वैदिक न्यूमरोलॉजी कोर्स में। ये तो मैं एक शॉर्ट सिनॉप्सिस आप लोग को दे रही हूँ कि कैसे आप लोग रिलेट कर सकते हैं। एक एक नंबर से आप अपनी जिंदगी को कैसे रिलेट कर सकते हैं। मूलांक और भाग्यांक में तो जो नंबर्स आए हैं वो तो आए ही हैं। दशाओं में जो नंबर्स आते हैं वो मैटर करते हैं। प्लस आपकी डेट ऑफ बर्थ में और भी तो नंबर्स हैं, वो नंबर्स भी आपकी लाइफ में एक रोल प्ले करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो आता है वो मूलांक और भाग्यांक का ही आता है। उसके बाद वी कम टू प्लैनेट नंबर 4, दैट इज राहु। राहु हैपन्स टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्लैनेट। राहु और केतु पहले एक सिंगल बॉडी हुआ करती थी, दैत्य स्वर भानु। स्वर भानु की स्टोरी बहुत लोगों ने सुनी भी है, बहुत लोगों ने नहीं भी सुनी है। तो स्वर भानु का जब सर काट दिया गया था, जब भगवान विष्णु ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया था स्वर भानु का, तो उन दोनों को, उसके सर और उसके धड़ को अपोजिट डायरेक्शंस में फेंक दिया था। नॉर्थ साइड में चला गया उसका सर और साउथ साइड में चली गई उसकी बॉडी। तो उसका जो सर है वो बन गया राहु। तो राहु इज ब्रेन, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, राहु इज ब्रेन। ये हेड है तो ब्रेन, शार्प माइंड, तो ब्रेन है तो वेरी ब्रेनी, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, दिमाग बहुत तेज होता है इनका, वेरी शार्प माइंड, और बिल्कुल इनोवेटिव थिंकिंग होगी इनकी। तो अब हमारा जो कहानी था उसमें 2 नंबर वाला कौन था? एनीवन? 2 नंबर वाला था जो शौक में आ गया, जो बेहोश था, हो गया, सोफे पे गिर गया चिलचिट्टा देख के, कॉकरोच देख के जो सोफे पे गिर गया। 4 नंबर वाला कौन होगा? 4 नंबर वाला बिल्कुल इनोवेटिव थिंकिंग, जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, जो इंसान को बिल्कुल बिल्कुल उसकी जड़ पे मारे। जिसने कहा मैं फूड क्रिटिक को फोन करके तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करा दूंगा, मतलब उसकी जड़ ही खत्म कर देनी है उसको। एकदम अलग हट के सोच, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड है। ये ऐसी चीजें सोचेगा जो किसी ने अभी तक से नहीं सोची हो। तो इट इज, दे आर ग्रेट साइंटिस्ट। रिसर्चर होते हैं तो साइंटिस्ट, वेरी ग्रेट साइंटिस्ट। इनकी मेमोरी भी बहुत अच्छी होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इनको बचपन की, बहुत बचपन की भी बातें इनको ध्यान रहती, किसने कब इनके संग क्या किया था, बिल्कुल इनको वो ध्यान रहे। तो जब राहु केतु बने थे, स्वर भानु का जब सर काटा गया था तो उसकी कंप्लेन लगाई थी सूर्य और चंद्रमा ने।
तो सिंस सूर्य और चंद्रमा ने स्वर भानु की कंप्लेन लगाई थी जिसकी वजह से उसका सर और धड़ अलग अलग हो गया, तो आज तक भी राहु केतु उसको ग्रसते हैं, सूर्य को, सूर्य चंद्रमा को राहु केतु आज भी उसको ग्रसते हैं। मतलब उसको आज भी ध्यान है कि इसकी वजह से मैं राहु बना, इसकी वजह से मेरी जिंदगी के दो हिस्से हो गए। इस तरह से ये लोग याद रखेंगे किसने इनके संग क्या अच्छा या बुरा किया था, एंड वो चीज वो लोग कभी भूलेंगे नहीं। इनके दिमाग के एक छोटे से कोने में वो सारी बातें शेयर्ड रहेंगी, दे वोंट फॉरगेट। यस, वेरी गुड मेमोरी दे हैव। People born on the 4th, 13th, 22nd and 31st of any month are ruled by this beautiful planet Rahu, that is number 4. पूरी टेक्नोलॉजी हमारी, पूरा जैसे हमारा जितना भी सोशल मीडिया है, टेक्नोलॉजी है, एवरीथिंग इज रूल्ड बाय राहु। 2020 में कोविड आया था, कोविड वाज वायरस, तो उसमें क्या हुआ था, हम सब घरों में कैद हो गए थे। क्या हमने कभी ऐसा सोचा था कि ऐसा कोई दिन आएगा जब सब कुछ बंद हो जाएगा, इंसान अपने घर के पीछे चार दीवारी में कैद हो जाएगा? सब कुछ बंद मतलब सब कुछ बंद, इनऑपरेटिव, हजारों लोगों की जान गई, हजारों नहीं लाखों लोगों की जान गई एक छोटा वायरस के लिए, और ऐसे ही फैला, मतलब जिसका कोई सीमा नहीं था। 2020 का टोटल करो कितना आता है, 4 आता है ना, 2 + 0 + 2 + 0 4 आ रहा है। राहु का साल था। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, राहु बोलता है ऐसा कुछ सोचो जो तुमने कभी सोचा नहीं है, मैं वो करके दिखाऊंगा, राहु। सो ये लोग डेफिनेटली अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करते हैं जो किसी ने कभी सोचा ही ना हो। राहु में जो लोग, जिस इंसान ने कभी राहु के साल 2020 में कोविड में जिस इंसान ने कभी अपने हाथ से उठा के एक गिलास पानी ना पिया हो, उसने पूरा पूरा झाड़ू पोंछा किया, क्योंकि कोई था ही नहीं, सर्वेंट वगैरह की कोई सुविधा ही नहीं थी उस टाइम पे। हाथ का काम, राहु इज अगेन हाथ का काम। तो करियर प्रोफेशंस में जब हम जाते हैं तो राहु वाले लोग जब हमारे पास में आते हैं कि भाई, सब हमको बोलते हैं सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी यही है मेरा फोटे है, मेरे को नहीं करना है ये, मैं और क्या कर सकता हूँ? हाथ का काम 100% लोग कर सकते, दे कैन बिकम एक्सीलेंट शेफ्स। इतने तरह तरह के डिशेस लोग बनाएंगे ना, जो कोई सोचा भी नहीं होगा कि इस सामान से भी ये डिश बन के तैयार हो सकता है। राहु 4 नंबर, 13 नंबर, 22 नंबर, 31 नंबर ऑफ एनी मंथ, और डेस्टिनी नंबर यानी कि भाग्यांक इस नंबर 4, रूल बाय दिस प्लैनेट राहु। भयंकर दिमाग चलता है, पूरा टेक्नोलॉजी ये लोग के जैसे फिंगर टिप्स पे है, पैदा होते ही फोन चाहिए, वो वाली सी बात है। राहु का एक बहुत स्पेशल फीचर है, अगर किसी का राहु खराब है तो उनके घर में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेटली पूरे टाइम खराब रहेगा, और कुछ नहीं तो ज्यादा तो उनका फोन ही खराब होता रहेगा। उनका फोन गिरता पड़ता रहेगा, टूटता रहेगा, नया फोन लेते रहेंगे, फिर गिर गया, फिर टूट गया, फोन हैंग हो गया, इस तरह की प्रॉब्लम उनके संग ज्यादा होगी। तो आप लोग चेक करिएगा अपने स्पेक्ट्रम में आज की क्लास के बाद में कौन आपके स्पेक्ट्रम में राहु वाले लोग हैं और किन के साथ ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। यस, इस क्लास में है जिसका कोई मूलांक भाग्यांक राहु है? नो वन इन द क्लास? ओके, गुड। नाउ वी कम टू प्लैनेट नंबर 5, मर्क्यूरी यानी कि प्रिंस। नंबर 5 इज ऑल्सो नोन एज अ बैलेंसिंग नंबर। अभी तक से हम जो प्लैनेटरी किंगडम देख रहे थे, राजा था, रानी था, उनके देवगुरु बृहस्पति, 4 नंबर हो गया उनका साइंटिस्ट, जो आगे के लिए इन्वेंशंस करेगा और बहुत सारी उनके लिए वो चीजें करेगा, नई नई चीजें लेके आएगा, हाथ का काम करेगा, राजा को बताएगा कि आगे उनको क्या प्लानिंग स्ट्रैटेजी करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। यस, तो 5 नंबर कौन है? 5 नंबर उनका प्रिंस चार्मिंग। जो हमने स्टोरी पढ़ी उसमें प्रिंस चार्मिंग कौन था? जिसका बर्थडे था, जिसके लिए सब उसका लाड चाव कर रहे थे, जिसके लिए सब केक लेके आए थे, इतना बड़ा पार्टी ऑर्गेनाइज हुआ था, उसका बर्थडे सीक्रेटिवली प्लान होके सरप्राइज दिया गया था। ये तो राजकुमारों का ही होता है ना, राजकुमार राजकुमारी, मतलब उस तरह के लोगों का ही होता है ना। नंबर 5, born on the 5th, 14th,
23rd of any month ruled by this beautiful planet Mercury. मर्क्यूरी यानी कि बुध, बुध माने बुद्धि, बुध माने पैसा। तो यस, जो अपनी बुद्धि से पैसा कमाए वो है बुध, मर्क्यूरी। प्लैनेटरी किंगडम का राजकुमार, राजा का उत्तराधिकारी, जिसके लिए सब कुछ करेंगे। क्यों? अगर हम एक सीक्वेंस देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 5 नंबर बिल्कुल 9 प्लैनेट्स के बीच में आता है। मतलब 4 नंबर इसके ऊपर है, 4 नंबर इसके नीचे है। मतलब इसको बाकी 8 प्लैनेट का सपोर्ट मिलेगा। 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 भी इसका सपोर्ट करेंगे, 6 7 8 9 भी इसका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि राजा के बाद राजा का बेटा ही आएगा, तो इसका सपोर्ट सब करेंगे। अब बुध है, बुद्धि है, तो यस कैलकुलेटिव होगा, बुद्धि से पैसा कमाएगा, वेरी कैलकुलेटिव। पीपल रूल मर्क्यूरी हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। मर्क्यूरी वाला कहीं खड़ा होके कुछ बोलेगा ना, सब बाध्य होके सुनेंगे, मतलब बड़ा अच्छा बोलता है। गौर गोपाल दास, मर्क्यूरी, यस। तो वेरी वेरी कैलकुलेटिव, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, एट द सेम टाइम दीज पीपल आर आल्सो वेरी बैलेंस्ड और वेरी रेस्टलेस। क्या तो ये बहुत ज्यादा रेस्टलेस है, टिक नहीं पाएंगे एक जगह पे। कब होता है ऐसा? नंबर 5 चार्ट में बहुत नंबर ऑफ टाइम्स आता है। कल मैं आप लोग को चार्ट बनाना भी सिखाऊंगी, और कल मैं आप लोग की जो जो लोग भी आज जुड़े हैं उन सबका प्रेडिक्शंस भी मैं आप लोग की चार्ट लगा के आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसे हम प्रेडिक्शंस करते हैं, दशाएं क्या चल रही है आपकी। आप लोग को उसमें बड़ा मजा आने वाला है, इसलिए आज मैं प्लैनेट्स आप लोग को पढ़ा दे रही हूँ, तो कल अपनी चार्ट में आप लोग भी समझ पाओगे कि कैसे प्लैनेट्स आपके लिए काम करते हैं। मर्क्यूरी वाले होते जनरली हमें ये लोग किस फील्ड में मिलते हैं? फाइनेंस में ज्यादा मिलते हैं। वाई इन फाइनेंस? बिकॉज फाइनेंस काम ही इनका यही है, रुपया पैसा वाला काम में ये लोग ज्यादा मिलेंगे। तो सीए, सीएमए, सीएफए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, बैंक के चला काउंटर पे लोग, या बड़े डायरेक्टर्स कंपनीज के जो पैसा का वो करते हैं, पैसा में डील करते हैं, प्रॉपर्टीज में डील करते हैं, दोज पीपल। नंबर 5। नाउ वी कम टू नंबर 6, दैट इज वीनस। वीनस अगेंस्ट दैत्य गुरु शुक्राचार्य। हमने देखा देव गुरु बृहस्पति, अब हमने देखा दैत्य गुरु शुक्राचार्य। दैत्य गुरु शुक्राचार्य क्या है? इट इज एन इंचार्ज ऑफ ऑल द ब्यूटी, लग्जरी, मटेरियलिज्म ऑफ लाइफ। नंबर 6 आपको पावर देता है सुख भोगने की। इंसान कितना सुख भोग सकता है। इट इज ऑल्सो अबाउट द रिलेशनशिप्स ऑफ लाइफ, आपकी फैमिली, आपकी स्पाउस, एवरीथिंग इज वीनस। People born on the 6th, 15th, 24th of any month ruled by this materialistic planet Venus. Venus also represents a pregnant woman, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो yes, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम, women which are ruled by the planet Venus, उनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है। यस, ये लोग बड़े फैशनेबल होंगे, लग्जरी ओरिएंटेड होंगे, मटेरियलिज्म होंगे, इनका घर बड़ा सुंदर सजा सवरा हुआ सा घर होगा, या फिर जिसका हाउस नंबर भी 6 पे आता है ना, उनका घर भी बहुत अच्छा सवरा हुआ सा घर होता है। नंबर 6 इज अ ब्यूटीफुल प्लैनेट जो आपको पैसों के साथ साथ ऐशो आराम, सुख सुविधाएं इत्यादि भी देता है। 6 नंबर वाला रिलेशनशिप्स की बहुत वैल्यू करता है, उनको रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा, और इनके बहुत ज्यादा पब्लिक इसका पब्लिक वैलिडेशन का बहुत ज्यादा इनको रहता है। तो हमारी स्टोरी में जो बंदे को ये चिंता थी कि पब्लिक उनको देख रही है, उनका वीडियो बना रही है, क्या कहेंगे लोग हमारे बारे में कि हम झगड़ा कर रहे हैं पब्लिक में आके, 6 नंबर वाला पब्लिक अपीयरेंस को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं ये लोग। घर से बाहर एक सब्जी लेने भी जाएंगे, बिल्कुल सज धज के तैयार होके जाएंगे। सिंपल भी इनको एक इंटरव्यू के लिए भी जाना है तो बहुत अपने अपीयरेंस को बहुत टू द मार्क, अप टू डेट ये लोग बिल्कुल रखेंगे। वीनस, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। यस, नाउ वी कम टू नंबर 7। नंबर 7 यानी कि राहु की बची हुई बॉडी। नंबर 7 स्वर भानु का धड़। सिंस इसके पास सर नहीं है, तो ये इंसान अपनी सिक्स सेंस पे बहुत ज्यादा काम करता है, तो इनकी सिक्स सेंस बहुत डेवलप्ड होगी। 7 नंबर, 16 नंबर एंड 25 नंबर, 7 16 एंड 25 को जो लोग बॉर्न होते हैं, दे आर रूल्ड बाय द प्लैनेट केतु।
वेरी वेरी इंट्यूटिव, दे आर ऑल्सो वेरी वाइज, विजडम होता है इनके अंदर बहुत ज्यादा। दे आर ऑल्सो नोन एज अ ट्रेजरर। ये लोग बहुत लॉयल होते हैं, किसी और के पैसे अगर इनके पास होगा तो कभी भी ये उस पैसों को हाथ नहीं लगाएंगे। तो पीपल हु आर इन एचआर, उनके लिए न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छा काम करता है, उनको लोगों को हायर करना होता है, तो दे कैन अंडरस्टैंड यस कौन बंदा बहुत टीम वर्क के लिए अप्रोप्रिएट है। 2 नंबर है, टीम में काम कर सकता है, तो कौन सोलो काम करेगा, 1 नंबर है। किसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है, 9 नंबर है, मारपीट कर लेगा, टीम में काम करेगा, तो उसको अकेले काम करने दो, उसको बहुत ज्यादा एग्रेसिव मतलब फील्ड वर्क उसको दो। 4 नंबर है, बहुत प्लानिंग के साथ काम करेगा एंड बहुत नए नए आइडियाज लेके आएगा। 7 नंबर है तो लॉयल रहेगा, तो पैसे की जिम्मेदारी भाई उसको दे दो, पैसा आपका इधर से उधर नहीं होगा। सो न्यूमरोलॉजी कैन गिव अस दीज इनसाइट्स ऑल्सो। लाइफ का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जहां न्यूमरोलॉजी की हेल्प आपको नहीं मिलेगी। ईच एंड एवरी प्लेस यू गेट हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी बाय डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। यस, सिंस केतु के पास सर नहीं है, ये लोग अपनी सिक्स सेंस पे, अपने इंट्यूशंस पे काम करते हैं, तो ये लोग बड़े फ्यूचरिस्टिक होते हैं। फ्यूचर की प्लानिंग, जैसे आने वाले 20 साल की प्लानिंग ये लोग अभी से करके बैठ जाएंगे। केतु है एक्चुअली हमारे ऑकल्ट का देवता, मतलब जितना भी हमारा ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामेस्ट्री, टैरो कार्ड रीडिंग, तंत्र मंत्र, प्राणिक हीलिंग, किसी भी तरह की जो ऑकल्ट होता है, इसको हम लोग पूरा अम्ब्रेला को ऑकल्ट बोलते हैं, रूल बाय दिस ब्यूटीफुल प्लैनेट केतु, क्योंकि यही हमारे इंट्यूशंस का कारक होता है, यही हमारे ज्योतिष का कारक है। तो अक्सर आप लोग देखोगे कि इनके चार्ट में नंबर 7 होता है, उनको ये सब चीजों के प्रति बड़ा रुझान होता है, बड़ा इंक्लिनेशन होता है इनको इन चीजों के प्रति। यस, हम आते हैं सूर्य पुत्र शनि पे, यानी कि नंबर 8, जिसका नाम सुनते ही सबको डर जाते हैं, अरे भाई सूर्य पुत्र शनि आ गया। शनि सूर्य का पुत्र है, उसका इलेजिटिमेट सन है, इसलिए वो जज भी है, कर्मों का लेखा जोखा लेने वाला। तो शनि को कर्माधिपति भी कहते हैं। शनि अपने टाइम पे कर्मों का लेखा जोखा लेता है, इसलिए बोल के भी लोग उससे डरते हैं। तो पीपल हु आर born on the 8th, 17th and 26th of any month ruled by सूर्य पुत्र शनि, उनकी लाइफ में बहुत सारे डिलेज एंड स्ट्रगल्स आते हैं, क्योंकि क्या होता है कि शनि एक बूढ़ा प्लैनेट है जो धीरे धीरे चलता है, तो इनके काम भी बिल्कुल उस तरह से धीरे धीरे होते, बीमारियां भी उनकी उस तरह की बीमारियां इनको होगी। ये लोग सोशल सर्विस करने में बहुत ज्यादा आगे रहते हैं, किसी भी काम को हाथ में लेके कंप्लीट करे बिना उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे भले ही पूरी रात बीत जाए, मतलब वर्काहॉलिक, जो काम के प्रति पूरी तरह से एडिक्टेड होते हैं, वर्काहॉलिक, ये लोग बिल्कुल उस तरह के लोग होंगे। यस, बट इट इज अ डिवाइन प्लैनेट, इनके भी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, एट द सेम टाइम दे आर वेरी इमोशनल ऑल्सो। दूसरों के दुख दर्द ये लोग जल्दी समझ जाते। स्टोरी में 8 नंबर वाला वो बंदा था जिसने कहा वेटर को मत मारो, इसकी कोई गलती नहीं है। तो इनको मतलब जो हमारी सर्विस क्लास होती है, इन लोगों को उससे बहुत ज्यादा प्यार होगा, बहुत ज्यादा उनके अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचेंगे, बिकॉज दे आर इनटू सोशल सर्विस, राइट। उनके अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचेंगे, उनके लिए काम करना चाहेंगे, उनके जीवन को अच्छा बनाना चाहेंगे। यस, तो आई थिंक बयानी अंकल जी, आप तो बहुत ज्यादा मतलब सोशल सर्विस करते हो, डेफिनेटली यू वुड बी एबल टू रिलेट विद इट। ओके, नाउ वी कम टू नंबर 9, द लास्ट प्लैनेट, जिसने वेटर को थप्पड़ मारा था जोश में आके। बिकॉज क्यों ऐसा ये लोग करते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि ये सेनापति है, कमांडर इन चीफ, उसका काम ही है मरना मारना। लेकिन ये लोग मार पीट मरना मारना किसके लिए करते हैं, अपने लिए नहीं। सेनापति क्या खुद अपने लड़ता है, कभी भी नहीं। लड़ता है वो प्रजा के लिए, कि दूसरे देश की सेना ने उस राज्य पे आक्रमण कर दिया, प्रजा का नुकसान ना हो जाए, किसी की जान ना चली जाए, उसके लिए वो अपनी जान दे देगा, औरों के लिए झगड़ा। तो स्टोरी में अभी उस बंदे ने अपने लिए उसको थप्पड़ मारा नहीं, उसको इतना जोर गुस्सा आया कि उसने उसको थप्पड़ मार दिया कि क्यों केक में कॉकरोच निकला, क्यों हमारी पार्टी खराब हो गई, क्यों मेरे दोस्त ने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, तुम्हारी वजह से वो खराब हो गई। वेरी वेरी ह्यूमैनिटेरियन, फुल ऑफ एग्रेशन, फुल ऑफ एनर्जी, और वेरी फास्ट।
आप इनको बोलो कि मार्केट से जाके सामान ले आओ, उसकी डिलीवरी लेनी है उस दुकान से, वो उतनी पूरी बात सुनेगा ही नहीं। मार्केट से जाके इतना ही सुनेगा, पहुंच जाएगा मार्केट, वहां जाके आपको फोन करेगा, क्या लाना था, क्या बोला था, मैं तो सुन ही नहीं पाया। इतने फास्ट है। यस। तो ये थे हमारे 9 प्लैनेट्स जिसके बारे में हमने बात करी। और बातें डेफिनेटली यस हम करेंगे कल के सेशन में। कल के सेशन में जो हमने प्लैनेट्स के बारे में बात करी, कल के सेशन में जितने भी लोग आज यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं सबको चार्ट बनाना सिखाऊंगी। और आप लोग की जो चार्ट है, हम लोग उसके बारे में भी सॉफ्टवेयर पे लगा के उसके बारे में हम बात करेंगे कि आप लोग की करंट दशा क्या चल रही है अभी, और क्या कहती है आपकी कुंडली आपके बारे में। यस। तो अभी तक से मैंने जो भी आप लोग के साथ शेयर किया, आप लोग उसके बारे में कुछ भी पूछना चाहते हो? वी हैव अनदर 3 minutes if anyone is having any questions. So anyone who wants to speak have to unmute themselves. मेरी आवाज आ रही है मैम? Yes. Yes. गुड इवनिंग मैम। सॉरी मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, तो आपकी स्टोरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, Yes. तो मैं ज्यादा कुछ सुन नहीं पाई। बट हाँ, मैं काफी कुछ रिलेट कर पाई। जो नंबर्स जब आप बोल रहे थे ना, तो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है, आदमी खुद तो जानता है वो क्या है नहीं है, तो मैंने अपने आप को काफी हद तक रिलेट किया जो आपने बताया। मतलब जस्ट नंबर से इतना पता चलता है, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा इस ये चीज तो को। कुछ भी नहीं था, ये तो ट्रेलर है। नंबर से क्या नहीं पता चलता है, बहुत कुछ। आपके घर में किसको क्या बीमारी हुई थी वो भी नंबर से पता चल जाएगा। बिकॉज ये हमारा नंबर नहीं है, ये हमारे ग्रह नक्षत्र, ये हमारे रूलिंग प्लैनेट्स है। तो शालिनी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपकी चार्ट में 8 नंबर है? डेट ऑफ बर्थ में 8 आता है? नहीं आता है, इसीलिए आप क्लास में लेट से आए हो। 8 वाला जो होगा पक्का डिसिप्लिन्ड होगा, और कहीं भी जाएगा 5 मिनट पहले पहुंचेगा। लेट होना उसका फोटे ही नहीं होता है। तो आई नो जो लोग लेट से आए हैं, क्यों लेट से आए हैं, आई गेट द आंसर। नहीं मैम, एक्चुअली मैं दूसरे काम कर रही थी, मतलब हाँ हाँ, नजर ही आई नहीं। कैन अंडरस्टैंड। वो आपका अपना रीजन नहीं होता है, वो आपके ग्रह नक्षत्र आपको वैसा ही नेचर प्रदान करते हैं कि आप काम कर रहे हो, तो आपको एक समय का वो हो जाता है। इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके। तो हम कह मैम सकते हैं कि यस, आपका आपकी उसकी वजह से इस आपके क्लास और कामों में भी प्रॉब्लम होगा। इस हाँ क्लास की जी। आपकी रिकॉर्डिंग है? सॉरी। इस क्लास जो आज आपने स्टोरी सुनाई, उसकी कोई रिकॉर्डिंग है आपकी, हाँ हाँ, ताकि मैं बिल्कुल रिकॉर्डिंग है, बिल्कुल रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग चल ही रही तो है। मैं सुन लेती आपका जो आपने स्टोरी बताई, तो उससे भी ठीक है, काफी कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर कर, ग्रुप में शेयर कर दूंगी आज की रिकॉर्डिंग, सो यू कैन वॉच। थैंक ठीक यू है ना? मैम। कल की क्लास में बिल्कुल सबको आइएगा, जो आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स पे जुड़ना चाहते हैं उन लोग भी आइएगा। लेकिन चार्ट एनालिसिस उन लोगों की होगी जो आज की क्लास में जुड़े हैं, मतलब सीमा, शालिनी, शर्मिला, लक्ष्मी अंकल जी, मंजू जी, वंशिका एंड विशेष। ये 7 जनों की ही चार्ट एनालिसिस होगी। बिकॉज जो लोग फर्स्ट क्लास नहीं करते, सेकंड क्लास में आई कांट गिव देम एन एनालिसिस, बिकॉज जिन्होंने एफर्ट्स डाला है पूरा प्लैनेट्स को समझने का, एनालिसिस भी उनको ही समझ में आएगी। वेरस जो आएंगे बाद में उनको समझ में नहीं आएगी ना चीजें। और ऐसे भी हमारा प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स जैसे स्टार्ट हो गया है, 2 क्लासेस मैंने सबके लिए कॉम्प्लीमेंट्री रखी थी। 3rd क्लास से वैसे भी वो पेड सेशंस हो जाते। ओके ठीक मैम। है ना? थैंक यू सो मच शालिनी। एनीवन एल्स हैविंग एनी क्वेश्चंस? आई डोंट थिंक एनीवन इज हैविंग। कोई नहीं, कल की क्लास में बिल्कुल आप लोग टाइम से आइएगा। राधा, मैं बोलूंगी 2 मिनट पहले आ जाइएगा, सो दैट आपका सैटर्न भी अलार्म स्ट्रांग लगा होगा, के आपको रखूंगी अच्छे ताकि रिजल्ट्स देगा, एंड आपको क्लास में भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बिकॉज आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट टाइमिंग। ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड एडिंग वैल्यू टू द क्लास। राधे राधे, आत्मा नमस्ते। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.